Hello friends, in the previous chapter we have studied points, line segment, line, rays, plane and parallel. I hope that you have already revised this point. So here I am going to take two lines, lines AB and line CD. Can I say that these lines are parallel lines? Yes, I can say that these lines are parallel because if I extend this line in any direction, these lines in any direction, they are not intersecting anywhere. Okay, so I can say that these lines are the parallel lines. Now I'm going to take two lines. First one is line N and other is line M. Okay, you can see that both the lines are intersecting each other at some point and forming a gap between them. Okay, now this is called the angle. Got it? Here we have a picture of a clock. In this picture you can see that one is the minute hand and other is the hour hand. Let us consider or imagine that these are the two lines. Okay, these are two lines which are intersecting at one point and forming an angle. Okay, now this is our angles and these two hands of the clocks are the arms of an angle, and this point of intersection is called the vertex. All these things are familiar to you because you have studied all these things in the previous standard. Okay? And you have also studied that angles are measured in the degree. Okay. Now we have learned how angle can form, but if we want to measure them, then what can we do? For that we have an instrument which is known as the protractor. Okay. By using this instrument we can measure any type of angle. Okay. You can see that this protractor is in the form of semicircle and it also have a central point. Okay, and here are some numbers which denote the degree of angle. मतलब यहाँ पे जितने ये जो numbers दिख रहे हैं ना आपको, ये जो है वो उस एंगल की डिग्री बताएंगे. मतलब वो एंगल कितने डिग्री का होगा ये अगर हमें देखना है तो हम इस प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे. तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना ये उस एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे और देखेंगे कि वो एंगल कितने मेजर का है. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बोल सकते हैं आप इसको. यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा आर्क होता है एंगल का वो मतलब कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा सकता है. ओके, नाउ वी चेक in which direction does the arms of an angle can move. First, we say that the arm can move from 0 to 10. Okay, means it shows the angle is of 10 degree. Similarly, we can show that the angle of 20 degree, angle of 50 degree, also angle of 90, 20, 160 degree. Also, we can find such angles. Also, we can find the angle of 360 degree. Okay, आप लोगों को पता होगा कि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का ही होता है. मतलब अगर एक आर्म जो है वो 0 से लेकर अगर हमने पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में अगर उसको मूव करेंगे तो वो 360 डिग्री पे आके रुकेगा. ये आपको पता होगा, आई होप. इट मीन्स आर्म्स ऑफ एन एंगल कैन टेक एनी पोजिशन. मीन्स वो कौन सी भी पोजिशन पे जा सकते हैं विद इन दिस 360 एंगल. नाउ we see different positions of arms. Okay, we see positions of arms creates an angle. मतलब एंगल कितने टाइप की पोजीशन क्रिएट कर सकता है ये हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे जो ये रेड और येलो कलर की आपको जो स्ट्रिप दिख रही है ना उसको कंसिडर करेंगे या फिर इमेजिन करेंगे कि ये दोनों स्टिक्स है. ओके, प्लीज इमेजिन. वी इमेजिन दैट टू स्टिक्स लाई वन अपॉन द अदर एंगल. मतलब अगर दो स्टिक्स को हमने एक के ऊपर एक रखा तो वो कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या? नहीं. तो इसको हम बोलेंगे ज़ीरो एंगल. ओके, इफ अगर हमने ये जो रेड वाली जो स्टिक है अगर हमने 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा अगर थोड़ी सी मूव कर दी, मतलब थोड़ी सी ऊपर वाले डायरेक्शन में मूव कर दी तो ये इस तरह का कुछ एंगल फॉर्म हो जाएगा. मीन्स एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री जो है जिसका मेज़र जो है
वो 90 डिग्री से कम होने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। सिमिलरली इफ ये जो हमारी वो रेड वाली स्टिक जो है उसको अगर हमने बराबर 90 डिग्री के एंगल में मूव कर दिया, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री की पोजीशन होती है अगर वहाँ तक हमने उसको मूव कर दिया तो ये राइट एंगल फॉर्म करने वाला है। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक वॉच है, उसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 बज रहे हैं, तो आप बता सकते हैं ये कौन से टाइप का एंगल होने वाला है। ध्यान से देखना, इसको एक्यूट एंगल मत बोलना, पहले देख लो कि इसका टाइप कौन सा है, अच्छे से देख लो। इट्स फॉर्मिंग एंड राइट एंगल। ओके, उसके बाद अगर हमारी जो रेड वाली स्टिक थी अगर उसको हमने 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा मूव कर दिया, ओके, थोड़ा ज़्यादा मूव कर दिया, तो ये किस टाइप का एंगल फॉर्म करने वाला है, ये ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करने वाला। ऑब्ट्यूस एंगल यानी क्या होता है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो इस टाइप के आने वाला है। ओके, उसके बाद अगर ये रेड लाइन को हमने पूरा का पूरा 180 डिग्री तक मूव कर दिया, मतलब एक पूरी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी, एंगल हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर लेगा। ओके, एंड एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल विच इज मेजर्ड एज 180 डिग्री। अगर हमने उसी रेड स्टिक को 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा मूव कर दिया, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड वाली जो स्टिक है वो 180 डिग्री के नीचे आ रही है, तो इस तरह के को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल। ओके, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर हमारी जो दोनों स्टिक है वो मूव करके फिर एक जगह पे आ रही है, मतलब ये पहली वाली ये जीरो एंगल नहीं है, यहाँ पे ये रेड वाली जो स्टिक है ना वो पूरा का पूरा मूव करके वापस उसी जगह आ रही है, तो इस टाइप के एंगल को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हील है, मतलब इसको कंसिडर कर लो कि ये जाइंट व्हील है, तो इस टाइप के एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। यानी एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमने एक पॉइंट से शुरू किया तो अगर वो, वो जो एलिमेंट है वो अगर उसी चीज़ पे वापस आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये जाइंट व्हील का जो एग्जांपल है ये किस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा, ये कौन से एंगल का एग्जांपल हो जाएगा, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट एंगल। ओके, नाउ कंसिडर अनदर एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ सीसॉ। यू कैन सी दैट दिस प्लेट, ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं जिसको मैंने डॉट डॉट से डिनोट किया है, ये एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये किस टाइप का एंगल हो जाएगा, इट इज़ एन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड ऑल्सो we can consider example of this fan. You can see that the angle formed is more than 90 degree but less than 360 degree, means what, this is the example of obtuse angle. I hope आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।